پچھلے ایک سال کے واقعات تعلیمی میدان میں جو پیش آئے ہیں، خصوصاً حجاب کے تعلق سے، اس کے بعد سے کمیونٹی میں اس بات کا بہت احساس رہا ہے کہ ہمارے اپنے معیاری ادارے ہوں اعلیٰ تعلیم کے۔ تو اس پس منظر میں ہم لوگوں نے یہ جو کالج شروع کی ہے، یہ ایک صرف کالج ہی نہیں ہے، ایک مہم ہے اعلیٰ تعلیم کمیونٹی کو دلانے کے لیے۔ اور اس میں کامیابی صرف ایک انسٹیٹیوشن کے محنت کرنے سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے، جب تک کہ پوری کمیونٹی کا ساتھ نہ ہو۔ اور ہمارے پاس کئی میٹنگیں جلسے ہوئے ہیں جہاں پہ سب مل کے کام کرنے کا ایک عزم کا اظہار ہوا ہے۔ اب ہماری اپیل ہے پوری کمیونٹی سے، لیڈروں سے، ماں باپ سے، بچوں سے، کہ اس کو ایک تحریک بنائیں تاکہ ہم اعلیٰ تعلیم کے میدان میں سب مل کے آگے بڑھ سکیں، سب مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم، میں افسر میسوری۔ ناظرین اکرام، آج شہر میسور میں واقع میسکو ادارہ، جہاں پچھلے دنوں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہاں پر اعلیٰ تعلیم یعنی ڈگری کالج کا انتخاب کیا جائے گا، آج اسی کے سلسلے سے ہم میسکو ادارے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو بڑی ہی مسرت اور خوشخبری دی جاتی ہے کہ میسکو ادارے میں بھی ڈگری کالج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں وکٹری فرسٹ گریڈ کالج، جو ڈگری کالج کا یہاں پر جو ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کے معاملے کو لے کر یہاں کے انتظامیہ اور ذمہ داروں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کا اس پر کیا کہنا ہے۔ ناظرین، پہلے ایک دو جنرل باتیں آپ کے توجہ میں لانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ شہر میسور میں میسکو ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاید واحد ادارہ ہے جہاں پر مجلس منتظمہ یعنی کہ ایگزیکٹو کمیٹی میں خواتین کی شرکت بھی ہے۔ پہلی تو وہ بات ہوئی۔ دوسرا، جیسا کہ اب سارا شہر جانتا ہے، میسکو اور المعمور ویمنس چیریٹیبل ٹرسٹ کے اشتراک سے کئی تعلیمی کام انجام دیے جا رہے ہیں، جس میں نمایاں طور پر ذکر کی ضرورت میسکو پی یو کالج کی ہے، جس کا آج 7واں سال چل رہا ہے اور بالکل کامیابی سے چل رہا ہے۔ ان 7 سالوں میں ہمارا تجربہ جو رہا ہے، اس میں نمایاں طور پر یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ اس علاقے میں میسور شہر کا شمال اور شمال مشرقی حصہ، نارتھ اور نارتھ ایسٹ جسے کہیں، اس میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی کمی ہے، جبکہ کافی بچے اب اعلیٰ تعلیم کے لیے جستجو بھی ہے، شوق بھی ہے اور کوشش بھی جاری ہے، اور اس کے لیے دور کے کالجوں میں داخلہ لے رہے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا کہ یہاں پر ایک ڈگری کالج کی ضرورت ہے۔ 30 مئی کو ہماری اسی طرح پریس کانفرنس ہوئی جس میں اعلان کیا گیا کہ ہمارا ایک ڈگری کالج شروع ہونے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اب میں آپ کے سامنے خوشی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کہ ہم اس کالج کو اس سال شروع کریں، اور ہمارے پاس داخلہ کا پروسیجر بھی سٹارٹ ہوا ہے، اپلیکیشنز وغیرہ دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات جو شروع میں کہنے کی ضرورت ہے جس کو، وہ یہ کہ ڈگری کالج اعلیٰ تعلیم کا ادارہ ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے تعلق سے ہماری سوچ میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر ان کی سوچ اکثر پی یو لیول کی ہوتی ہے یا اسکول لیول کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ایک اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فکر، ہائی تھنکنگ جسے کہتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس میں لانے کی ضرورت ہے، جس میں
यहाँ के कॉलेजेस का भी एक तरह से इस जिम्मेदारी को पूरी नहीं की जा रही है। और इन चीज़ों को हम जहन में रखते हुए इस कॉलेज को शुरू करने जा रहे हैं कि ये न सिर्फ एक हमारी नई कॉलेज हो बल्कि एक नई मेयारी कॉलेज हो, जहाँ पे तालीम का निज़ाम मेयारी हो, जहाँ पे और भी प्रोग्राम आला मेयार के हों, जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज स्किल्स, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम है। हालांकि कहने को हमारे पास 2 कोर्सों की इजाज़त है, बीकॉम और बीसीए। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हम इन दोनों कोर्सेस में एड ऑन कोर्सेस को शामिल किए हैं। मसलन बीकॉम के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स में जिसमें टैली और इस तरह के कई और कोर्सेस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, और क्योंकि अब एनईपी में बीकॉम भी 4 साल का कोर्स है, इन 4 सालों में हम नए नए एड ऑन कोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह बीसीए में भी हमारे पास एड ऑन कोर्सेस हैं, और चूँकि हमारे पास 25-30 साल का कंप्यूटर रिक्रूटमेंट का तजुर्बा है, इस तजुर्बे की रोशनी में हम इन नए तलबा को भी इस बात की यकीन दहानी कर सकते हैं कि हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट भी रहेगा, क्योंकि इसका इंतज़ाम पहले से हमारे पास चलते आ रहा है। बड़ी कंपनियां हमारे पास आती हैं, और साथ साथ बाहर की विदेशी कंपनियां जैसे कि दुबई के, गल्फ़ कंट्रीज़ की कंपनियां भी यहाँ पर आकर कैंपस रिक्रूटमेंट हमारे पास ITA में करते जा रहे हैं। अक्सर माँ बाप जो है कॉलेज के इंतखाब के ताल्लुक़ से हमारी गुजारिश है कि माँ बाप थोड़ा संजीदगी से इसके ताल्लुक़ से गौर करके फ़ैसला करें। अक्सर इंतखाब जो कॉलेजों का हो रहा है वो सुनी सुनाई बातों पे हो रहा है। माँ बाप और बच्चे भी सुनी सुनाई बातों पे जा रहे हैं। मसलन किसी कॉलेज का बड़ा कैंपस है और उस कॉलेज में ख़ानदान के बड़े तालीम हासिल कर चुके हैं, इस बुनियाद पर आज भी तालीम हासिल करने के लिए वहाँ जाने की एक जुस्तजू है, माहौल भी है, रुझान भी है। जबकि सोचना ये चाहिए कि आज उस कॉलेज की हाल क्या है, उसका तालीमी मेयार क्या है, हमारे बच्चों को वहाँ किस तरह की तालीम हासिल हो रही है। दाखिले तो हो रहे हैं, अच्छी खासी फ़ीस ली जा रही है, मगर बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है वहाँ पे, जिसका हम यहाँ पे ख़ास तौर से इंतज़ाम करते हैं। माँ बाप से हमारी गुजारिश है कि इसके ताल्लुक़ से गौर करें, कॉलेज के बारे में मालूमात हासिल करें, उनका मेयार क्या है वो भी देखें। आज हमारे बच्चे जिन कॉलेजों में जा रहे हैं वो मैसूर सिटी के टॉप कॉलेजेस में उनका शुमार नहीं है। इस बात को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ। ज़्यादातर मिशनरी कॉलेजेस को जाते हैं जहाँ पे मेयार आज इतना ऊंचा नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। पिछले 25 सालों में इनका टॉप में शुमार नहीं है। इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, फ़ीस के ताल्लुक़ से भी ये यहाँ पर कहना ज़रूरी हो जाता है कि अच्छी खासी फ़ीस ली जा रही है और माँ बाप बखुशी देते जा रहे हैं। हमारे पास इसके मुकाबले में फ़ीस बहुत मुनासिब है, अफोर्डेबल जिसे अंग्रेज़ी में कहा जा सकता है, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, और डिस्टिंक्शन और उससे ज़्यादा जो नंबरात मार्क्स लिए हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी कंसेशंस हैं, और इस तरह के बच्चे आ भी रहे हैं हमारे पास। उसके अलावा भी अल-मामूर ट्रस्ट की जानिब से बच्चों को स्पॉन्सर करने का जो सिलसिला है वो डिग्री कॉलेज में भी जारी है। इसका भी फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, और इसके ताल्लुक़ से माँ बाप हो कि स्टूडेंट्स हो आके हमसे मिल के बात कर सकते हैं। ज़रूरी है कि कॉलेज को भी आएँ, बातचीत करें, मालूम करें कि क्या मामलात हैं, फ़ीस का हो कि तालीमी मेयार का हो कि फैसिलिटीज़ हो। बिल्डिंग कैंपस हालांकि हमारा इतना बड़ा नहीं है, 1 एकड़ का कैंपस है, मगर मेयारी फैसिलिटीज़ मुहैया हैं। हमारे क्लासरूम्स एक्सेलेंट हैं, लाइब्रेरी एक्सेलेंट है,
फैकल्टी एक्सेलेंट है और इसका सबूत हमारे पीयू कॉलेज का रिजल्ट्स भी हैं और हमारे यहाँ से पीयू पास शुदा जो तलबा हैं वो ही हमारे एम्बेसडर्स हैं। सबूत हैं कि हमारे पास जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। सर, आपने पिछले बयान में ये कहा था कि अलमामुर की जानिब से जो अब तक कॉलेज चल रही थी एग्जिस्टिंग कॉलेज उसमें सिर्फ गर्ल्स को था, तो ये जो विक्ट्री फर्स्ट ग्रेड कॉलेज का जो आपने अभी ऐलान किया है, एक तरह से एक खुशखबरी वाला ऐलान है, इसमें कोई एजुकेशन है? थोड़ा करके जी हाँ, वालिदैन को मालूम हो जी बता दीजिए सर। इस बात का जिक्र भी बहुत ज़रूर है। शुक्रिया आपका इस नुक्ते को उठाने के लिए। हमको एहसास हुआ है कि पीयू तक तो बच्चे गर्ल्स के लिए अलग एक कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि जहन सोच बच्चों में अभी पुख्तगी नहीं रहती। मगर जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आते हैं बच्चे तो पुख्तगी रहती है और उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है। ये प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, बीकॉम हो कि बीसीए हो, प्रोफेशन में जाने वाले बच्चों को एक्सपोजर की ज़रूरत है। सोसाइटी में जहाँ पे उनको प्रोफेशंस में जाना है वहाँ पे सिर्फ औरतों के प्रोफेशन का इंतज़ाम नहीं होता, मर्दों के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमने तय किया है कि लड़कियों को और लड़कों को साथ रख के तालीम दें ताकि अच्छा एक्सपोजर हो। मगर इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत अच्छा इंतज़ाम है कि ताकि किसी तरह का मिसयूज़ ना हो। अक्सर ये हो जाता है कि जहाँ पे लड़के लड़कियाँ तालीम हासिल करते हैं वहाँ पे माहौल ही कुछ इस तरह होता है, आज़ादाना माहौल होता है, आज़ादाना माहौल होता है। जी हाँ, वो उस बात का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे पीयू कॉलेज को ही कंपेयर करें आप तो माहौल यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ख़ास तवज्जो दी जाती है इस बात को कि बच्चे खुले जहन से समझें हर ज़िंदगी को। तो डिग्री कॉलेज में इसका और भी ज़्यादा इंतज़ाम रहेगा। माँ बाप इसके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं एक छोटी मिसाल दूँ आपको। ये एक बच्चे हमारे जो पूरी दुनिया में आज मशहूर हो गई है वो हमारे मंडिया की बच्ची मुस्कान है। उसमें जो दिलेरी, हिम्मत और बात करने की सलाहियत उसमें जो थी, जो देखने को मिलती है, वो आपको ऐसे बच्चे में कम मिलती है जो सिर्फ लड़कियों की कॉलेज में तालीम हासिल की हो। 50-100 बच्चों लड़कों के दरमियान खड़ के इस तरह का जवाब देना उसको इसलिए मुमकिन हुआ कि उसको एक्सपोजर था लड़कों के साथ। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसी इदारे में ये दाखिले शुरू हो चुके हैं क्योंकि पिछले दिनों सेकेंड पीयूसी का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद क्या दाखिलों का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी हाँ, सिलसिला शुरू हो चुका है। हम इंतज़ार कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अप्रूवल का। 3 दिन पहले अप्रूवल आया, हम फ़ौरन एप्लीकेशन देना शुरू किए हैं। पब्लिसिटी भी हो रही है सोशल मीडिया में। इसी के ताल्लुक़ से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया है। सर, तशहीर के बारे में क्या कर रहे हैं आप? मसाजिद में ऐलान कर रहे हैं या किस किस्म के? जी, हमारे लिए जो भी चैनल्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस जी और फ्लेक्सेस, इस तरह की पब्लिसिटी, साथ साथ हमारे पास जो ख़ास तौर पे हमारे लिए मखसूस चैनल है वो मसाजिद का है। जुमा में ऐलान, उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है, हो रहा है इंशाल्लाह। इंतज़ार था, अभी को शुरू हो जाएगा। मैडम, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, मैं अलमामुर वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट मैसूर रजिस्टर्ड की जानिब से अर्शे अब्दुल ख़ादर सेठ ट्रेजरर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। पहले तो शुरुआत में ही मैं शबीर सर को मुबारकबाद देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेस्को और अलमामुर वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट की जो ये गठबंधन जिसको बोलते हैं, हमारा MOU आज 7 साल पहले साइन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर कोऑपरेशन और यूनिटी के साथ हम ये काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पहले तो अलमामुर का ये है कि टुगेदर वी मेक द डिफरेंस। टुगेदर मतलब हम सब मिलके, ये औरतों का एक्चुअली NGO है जो ख़ास तौर पर औरतों के ही लिए अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है।
लड़कियां जो हमारे तबके के हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन तबके के हैं और दूसरे लोअर इनकम ग्रुप्स के हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये हम लोग शुरू करे हैं। और इसी के तहत हमारा ये प्रोजेक्ट था मेस्को पीयू स्टार्ट करने का, मेस्को के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा है। और अब ये जो नई कॉलेज का शुरुआत है, डिग्री कॉलेज, विक्ट्री फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इन एसोसिएशन अल-मामूर एंड मेस्को। ये मैं बताते चलूँ कि मेस्को जो है काफ़ी लोगों में ये बात ये है कि इट इज़ अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट मुस्लिम एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ मैसूर, एम स्टैंड्स फॉर मैसूर। तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के पास मिसकंसेप्शन है कि ये एरिया में एक्चुअली मुसलमान ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन हम लोग नॉन मुस्लिम्स को भी खुशामदीद करते हैं यहाँ पर। हमारे स्टाफ भी it's a different, all religions are there. We have Hindus as well as Muslims in our staff. In Mysore PU college staff में हमारे पास मुसलमान और नॉन मुस्लिम टीचर्स आर, लेक्चरर्स आर देयर। एंड आपको मैं बताते चलूँ कि ये नई कॉलेज जो है हमारी, आप देख सकते हैं अराउंड द फर्नीचर एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, द क्लासरूम्स, ये सब ख़ास तौर पर इनके ऊपर हम लोग ख़ास ध्यान दे के बनाए गए हैं, ताकि हमारे बच्चों को ये कम फ़ीस लेने के बावजूद उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस का रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा, उनको पर्सनल अटेंशन और ख़ास तौर पर उनको सब चीज़ मुहैया की जाएंगी यहाँ पर इंशाअल्लाह। जैसे सर अभी बता चुके हैं आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, ख़ास तौर पर ये सब स्किल्स सिखाए जाएंगे अलॉन्ग विद द डिग्री। तो और ये फ़ीस भी हमारी बहुत ही रीज़नेबल रखी गई है, ताकि सब तबके के लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पर सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को, जैसा सर बताए अभी, तहक़ीक़ करके हमारी कॉलेज में दाखिला दिलाएं। और ये सब जो है हमारा अल-मामूर वुमेंस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर उल्फत फ़ातिमा, डॉक्टर मिसेस नईमा बानो एंड हमारे सेक्रेटरी जो है मिसेस सलमा सुबहान के गाइडेंस पर चल रहा है। ये सब तालीमी इदारे से है ये सब लोग, और मैं अल्लाह से उम्मीद है और यकीन के साथ कहती हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला हमारे को कामयाबी देंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलाएं, बेफ़िक्र होके। कोविड है, इस बात का फ़िक्र ना करें, हम पूरी डिसिप्लिन के साथ लोगों को तालीम देने की कोशिश करेंगे। मैडम, जैसे कि आपने कहा कि अल-मामूर की जानिब से ख़ुसूसन गरीब बच्चों की खासकर मदद का एक ख्याल है आपका, तो इस सिलसिले में आपके अब तक जो काम किए गए हैं, आने वाले दिनों में जो डिग्री कॉलेज का अभी ऐलान किया जा रहा है, क्या ऐसे कॉलेज में भी वो उन बच्चों को मौका मिलेगा जो बहुत ही गरीब है? जी हाँ, इंशाअल्लाह ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसा कि सर बताए अभी आपको, एप्लीकेशन कल ही देना शुरू हुए हैं और उसमें से 2 एप्लीकेंट्स आ चुके हैं, जिसको ऑलरेडी हम लोग कंसेशन की बात कर चुके हैं। उनके लिए हमारी फ़ीस बहुत कम है, उसमें से भी उनको 50% स्पॉन्सरशिप दिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 200+ मेंबर्स है, जिसके पास से मैं खुद एज ए ट्रेजरर कलेक्ट करती हूँ उनकी चैरिटी, डोनेशन, ज़कात। सो हम लोग इंशाल्लाह उनको स्पॉन्सर भी करने को तैयार है। तो जो एक तरह से आने वाले दिनों में एक रोशन मुस्तकबिल बनाने वाले इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स को खुसूसन हमारे यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे हैं, वेंडर्स के हैं, कूली है, वैसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जिनको 10th और PUC तक की एजुकेशन मुहैया थी। अब इंशाल्लाह मेस्को के तहत उनको आगे भी डिग्री कॉलेज में भी पढ़ने को नसीब होगा इंशाल्लाह। एक सवाल है, जिस तरह हाल ही में SSLC की जानिब से जो नताइज हमारे सामने आए और PUC के नताइज हमारे सामने आए, जिसमें खुसूसन लड़कियों ने तालीम के मैदान में अपना एक बहुत बेहतरीन किरदार जो है अदा किया है, तो आप ही खुद एक खातून हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? और अभी आपको पता होगा जो मंगलूर से एक लड़की हैं जिन्होंने 2nd टॉपर जो पूरे स्टेट के लिए की गई, ये आप किस तरह इसको देखते हैं?
दिस जस्ट गोज़ टू शो दैट जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ख़ास तौर पर औरतों की एजुकेशन के लिए, उसमें अल्लाह ताला हमारे को साथ दे रहे हैं और ये आगे बढ़े और लोगों में कॉन्शियसनेस आ गया है, अवेयरनेस आ गया है कि औरतों को भी एजुकेशन देना ज़रूरी है, हमारे लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। जैसा कि हमको सब मालूम है कि लड़कियां अगर पढ़े तो पूरा ख़ानदान पढ़ लेता है। इसके लिए इस चीज़ पर तवज्जो दी जा रही है और हमारा भी यही मोटो है। लड़कियों को पढ़ाने का मकसद यही है कि हम जो है हर बच्ची को, फैमिली की हर बच्ची को अगर वो डिग्री लेवल तक भी पहुंच जाएंगी तो आगे जाके उनके ख़ानदान को भी एजुकेशन मिल सकती है। मैं डॉक्टर नईमा बानो, मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ। मैं अल-मामूर की जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेस्को में भी मुझे दाखिल कर लिया गया है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना के। तो ये नवाजिश है इन लोगों की और अल्लाह का करम है। इस पोजीशन में रहकर मेरा भी यही इरादा है और ये है कि हम सब मिलकर, जैसा कि अभी अर्शिया ने कहा कि हम सब मिलकर हम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि एक लड़की से ख़ानदान बनता है और बस एक लड़के को पढ़ाना तो एक लड़के को पढ़ाना है, मगर एक लड़की को पढ़ाने से एक ख़ानदान को इल्म देने का। और आजकल का जो और हमारा ये भी इरादा है कि इस कॉलेज में भी कल्चरल प्रोग्राम भी रहेंगे। उनको जैसा कि उनका आजकल के बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। और आजकल एजुकेशन को अलग कर दिया गया है और अखलाक को अलग कर दिया गया है। अखलाक घर में सिखाना है, बस एजुकेशन देंगे, मार्क्स में अच्छा ऊपर लाएंगे, ये हो गया है ट्रेंड। लेकिन उस ट्रेंड को हम चेंज करना चाहते हैं कि एजुकेशन इज़ बोथ इम्पार्टिंग नॉलेज एज वेल एज मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑल दिस, और अखलाक सिखाना। बस एजुकेटेड डिग्री है तो इंसान को कोई ख़दर नहीं है जब तक उसमें अखलाक और वो कैरेक्टर बिल्डिंग ना हो। तो हमारा एम यह है कि उनमें वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी लाया जाए और अखलाक भी सुधारा जाए। उसके साथ उन्हें जो दुनिया में कामयाब होकर आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरत है एज ए टेक्निकल पर्सन, क्योंकि BCA इज़ ए टेक्निकल कोर्स, वो BCA टेक्निकल कोर्स और इसका बहुत डिमांड भी है। इसमें ऐसे लोग जाएं जो अखलाक और किरदार में भी आला हो। ये मेरा और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है मेस्को इदारे में जो खुसूसन डिग्री कॉलेज का इंतज़ाम किया गया है जो हमारे आसपास की बच्चों के लिए, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।